کہانی ہے ایک غریب لڑکے کی جس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت بس اس کی سچائی تھی۔ مگر ایک رات اس کی قسمت کا دروازہ کھلا جب اس کی ملاقات ہوئی ایک جن جادی سے۔ کیا اس غریب کا پیار اور ایمان اس جن جادی کو انسان بنا پائے گا یا پھر دونوں کی محبت ادھوری رہ جائے گی؟ گاؤں کے بیچم بیچ ایک پرانے سے چھپر تلے بنا چھوٹا سا دکان نما کمرہ تھا۔ باہر ایک لکڑی کی چوکی تھی اور اندر ٹوٹی پھوٹی کرسی جس پر گاؤں کے آدمی بیٹھ کر اپنے بال کٹواتے۔ دیوار پر ایک چھوٹا سا آئینہ ٹنگا ہوا تھا جس میں چہرہ آدھا ہی دکھتا تھا، مگر گاؤں والے اتنے میں ہی خوش تھے۔ یوسف نائی کی دنیا، صبح سے شام تک بال تراشنا اور شیو بنانا اور قصے سنانا۔ یوسف کی زندگی سیدھی سادی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا خالی پن تھا۔ کبھی سوچتا کہ شادی کر لوں، مگر ہر بار یا تو قسمت روٹ جاتی یا لڑکی والے اس کی غریبی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ ہنستا تو لگتا دنیا کا سب سے بے فکر انسان ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ گاؤں والے صرف اسے نہ ہی سمجھتے تھے، مگر سچ میں یوسف بہت نرم دل اور خواب دیکھنے والا انسان تھا۔ اکثر سوچتا کاش کوئی ساتھی ہو جو میری باتوں کو سنے اور میرے خوابوں کو سمجھے، اور پھر ہنس کر کنگھی چلا دیتا، چلو بھائی اگلا آؤ۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے یوسف کی دنیا بدل دی۔ اس دن دوپہر کو دکان پر کام کم تھا۔ یوسف نے سوچا دکان بند کر کے ندی کنارے جا بیٹھے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی آواز اسے سکون دے گی۔ وہ تالا لگا کر ندی کے پاس بیٹھ گیا۔ پانی کی لہروں میں اسے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دی، جیسے اسے کوئی پکار رہا ہو۔ اچانک اس نے دیکھا پانی پر ہلکی سی روشنی ٹھہری ہوئی ہے۔ پہلے لگا کہ سورج کی کرنیں ہیں، مگر روشنی ہلتی نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا، ہاں وہی روشنی تھی۔ دل میں خیال آیا یہ کیسا کرشمہ ہے، پھر سر جھٹک دیا کہ شاید وہم ہے، مگر لوٹتے وقت دل میں بے چینی بن رہی تھی۔ اگلے دن اس کی دکان پر ایک اجنبی آیا، لمبے قد کا، سر پر اونچی ٹوپی، چہرہ ڈھکا ہوا۔ یوسف نے پوچھا میاں کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بس اتنا کہا، راستہ بھٹک گیا تھا، سوچا بال کٹوا لوں۔ جب یوسف نے اس کی ٹوپی اتاری تو دنگ رہ گیا۔ اس کے بال اتنے گھنے اور لمبے تھے جیسے برسوں سے کٹے نہیں، اور ان میں عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ کنگھی چلاتے ہوئے اسے لگا مانو وہ کسی دھن میں کنگھی چلا رہا ہو۔ یوسف حیران تو ہوا پر چپ رہا۔ اسی بیچ کھڑکی سے وہی جھلملاتی روشنی دکھائی دی جو اس نے کل ندی کے کنارے دیکھی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بال کاٹنے کے بعد وہ اجنبی بولا، یوسف جلدی ہی پھر ملاقات ہوگی۔ یوسف چونک گیا، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ رات کو نیند ٹوٹی تو اسے لگا کہ کوئی کانوں میں کہہ رہا ہو، یوسف کل تیاری رکھنا، کوئی آنے والا ہے۔ وہ پسینے میں بھیگا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ سپنا تھا یہ سچ؟ اگلے دن دوپہر کو دکان کھولی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک عورت اندر آئی۔ یوسف کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے پر ایسا نور تھا جیسا اس نے کبھی نہیں دیکھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک اور بالوں میں ایسی رات کی کلیمہ پر چاندنی بکھری ہو۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور بولی، میرے بال بناؤ یوسف۔ یوسف کے ہاتھ کانپ گئے، جی کیوں نہیں۔ جب اس نے اس کے بالوں میں کنگھی کی تو لگا مانو وہ کسی اور ہی دنیا کی ریشم ہو۔ پوری دکان مہک اٹھی۔ یوسف کا دل دھڑک اٹھا۔ تبھی آئینے میں اس نے کچھ عجیب سا دیکھا۔ اس عورت کا عکس آئینے میں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پل بھر کو اس کی آنکھیں لال ہو گئی، پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ یوسف گھبرایا مگر عورت مسکرا دی۔ بال سنوار کر وہ کھڑی ہوئی اور بولی، یوسف کل اسی وقت پھر آؤں گی، میرے پاس اور بھی کہانیاں ہیں۔ یوسف کا من الجھن میں تھا، اور ڈر بھی، اور ایک عجیب سا کھچاؤ بھی۔ وہ عورت حقیقت میں ایک جن جادی تھی، اور یوسف کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ رات گزر گئی لیکن یوسف کی آنکھوں سے نیند روٹ چکی تھی۔ بار
बार उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहे थे, वो औरत कौन थी, उसके बाल वैसे क्यों थे, और सबसे बढ़कर उसे उसका नाम कैसे पता था। सुबह जब सूरज निकला तो यूसुफ की आंखों के नीचे सूजन थी, मगर उसने फिर भी दुकान समय पर खोली। लोग आते रहे और बाल कटवाते रहे, लेकिन यूसुफ की नजर हर वक्त दरवाजे की ओर ही लगी रही। शाम होते ही हवा में ठंडक घुलने लगी, आसपास के दियों की लो झिलमिलाने लगी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और वो औरत अंदर आई। इस बार उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी मुस्कान में एक अनदेखी चमक थी। यूसुफ ने झुककर उसने कहा, बीवी जी आप आ गई। वो हंस पड़ी, मैंने कहा था ना यूसुफ के कल आऊंगी। यूसुफ ने कुर्सी साफ की और वो बैठ गई। जैसे ही उसने कंघी चलाई, औरत ने धीरे से पूछा, यूसुफ तुम्हें डर नहीं लगता? यूसुफ चौंका, किस बात का डर बीवी? मेरे पास आकर मेरे बाल संवार कर कोई डर महसूस नहीं होता। यूसुफ के हाथ थम गए। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तो सबके लिए हमेशा यही करता हूँ, फिर आपके लिए क्यों डरूं? वो अचानक उसकी आंखों में देखने लगी। उन आंखों में ऐसा जादू था कि यूसुफ का दिल मानो काबू से बाहर हो गया। फिर बोली, यूसुफ तुम सबके लिए एक नाई हो, मगर मेरे लिए तुम कुछ और हो। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा, होठ हिले मगर शब्द नहीं निकले। तभी बाहर से शोर उठा। दो गांव वाले गुजर रहे थे और मजाक में बोले, अरे देखो यूसुफ की दुकान में कोई राजकुमारी बैठी है। क्या दूसरा हंसकर बोला, भाई जरूर सपने देख रहा होगा, इतनी हसीन औरत भला नाई के पास क्यों आएगी। यूसुफ का दिल बैठ गया। डर हुआ कि लोग शक न करने लगे। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत वहां से गायब थी। कुर्सी खाली थी, जैसे वहां कोई बैठा ही नहीं। उस रात फिर नींद नहीं आई। सपने में उसने देखा वही औरत जंगल के किनारे खड़ी है और उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और वो कह रही है, यूसुफ मुझे ढूंढने आओ, नदी के पास पुराने बरगद के नीचे। सुबह उठते ही यूसुफ को यकीन हो गया कि ये एक सपना नहीं है, एक हकीकत है। वो नदी के पास गया। पुराने बरगद के नीचे सचमुच वही औरत खड़ी थी, जैसे सपने ने हकीकत का रूप ले लिया हो। वो मुस्कुराई, यूसुफ तुम आ गए। यूसुफ की आवाज कांप रही थी, आप कौन हो, इंसान हो या कुछ और? वो पास आई और सरगोशी में बोली, मैं जिन जादी हूँ, मगर तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल बदल गया है। यूसुफ के कदम डगमगाए, भाग जाने को मन हुआ, मगर दिल ने फुसफुसाया कि यही तो है वो जिसकी तलाश थी। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब दिल बदल गया? वो बोली, मैंने सदियों से इंसानों को देखा है, उनकी कमजोरी और उनकी स्वार्थी आदतों को, मगर तुम में कुछ और है, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी सच्चाई। मोहब्बत की है। यूसुफ की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, बीवी आप मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैं एक मामूली नाई हूँ। वो पास आई और उसकी आंखों में चमक थी। मोहब्बत मजाक नहीं यूसुफ, और हाँ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। यूसुफ के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई, जैसे बरसों की तन्हाई को जवाब मिल गया हो। मगर कहानी यहाँ नहीं रुकती। गाँव वालों में बातें फैलने लगी। कोई कहता यूसुफ पर साया है, कोई कहता यूसुफ पागल हो गया है। एक रात कुछ लोग पीछा करके उसकी दुकान के पास पहुँचे। देखा मामला क्या है। उस रात जिनजादी आई हुई है। वो कुर्सी पर बैठी और यूसुफ उसके बाल संवारने लगा। बाहर से झांककर लोगों ने देखा तो दिमाग सुन रह गया। आईने में इंसान का अक्स नहीं था, कभी रोशनी का लिबास, कभी धुंध, कभी साया। डरे सहमे लोग भाग गए और अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, यूसुफ नाई के पास जिंद आता है। ये सुनकर यूसुफ के भीतर डर उभर गया। उसे लगा कि अगर गांव वाले भड़क उठे तो वो जिन जादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शाम को जब वो आई तो यूसुफ ने कहा, बीवी जी अब मत आना, लोग शक करने लगे हैं, वे लोग तुम्हें चोट पहुंचा देंगे। जिन जादी का पहली बार चेहरा उदास हुआ। यूसुफ तुम भी यही सोचते हो कि मैं चली जाऊं? यूसुफ की आंखें भर आई, नहीं मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे डर है। वो आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। यूसुफ क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? यूसुफ की कांपती आवाज निकली, हाँ करता हूँ। जिन जादी मुस्कुरा दी, तो डरो मत, मोहब्बत के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। उसी पल बाहर फिर शोर उठा।
कुछ गांव वाले डंडे लेकर दरवाजे पर खड़े थे। वो चिल्ला रहे थे, यूसुफ दरवाजा खोल, हम जानते हैं अंदर जिन है। यूसुफ का दिल दहल गया। उसने मुड़कर देखा तो जिन जादी गायब थी, बस उसकी खुशबू बाकी थी। यूसुफ बाहर निकला तो लोग उसे घेर चुके थे। सच बता, ये सब क्या है? यूसुफ चुप रहा। आंखों में आंसू थे, दिल में डर भी और मोहब्बत भी। उस रात उसने ठान लिया कि अगर ये रिश्ता सच्चा है तो वो उसे आखिर तक निभाएगा, चाहे पूरा गांव उसका दुश्मन क्यों ना बन जाए। रात की काली घनी चुप्पी में यूसुफ का दिल बेचैन था। बाहर गांव वाले उसके खिलाफ बात कर रहे थे। कोई कहता वो जिन का साथी है, कोई कहता वो पागल हो गया है। यूसुफ के दिल में बस अब एक ही ख्याल था, मैं चाहे सब कुछ खो दूं, उसे नहीं खो सकता। उसी वक्त दुकान के कोने में रोशनी फैली और वही जिनजादी सामने आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी। यूसुफ, तुम खतरे में हो। गांव वाले तुम्हें खत्म करने की ठान चुके हैं। यूसुफ मुस्कुराया, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। डर तो बस इतना है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। जिनजादी के होठ कांप उठे। उसने धीरे से कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाना चाहती हूँ। उसने अपनी हथेली यूसुफ के हाथ पर रख दी। अचानक यूसुफ की आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया उभर आई, रोशनी और साये की दुनिया। वहाँ जिनजादी कैद में थी। उसकी कौम ने उसे सजा दी थी क्योंकि उसने इंसान से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी। उनकी दुनिया में सख्त महीन थी। जो जिनजादी ऐसा करती थी उसे जला वतन कर दिया जाता। यूसुफ ने ये सब देखा तो उसका दिल और भी भर आया। तो तुमने मेरे लिए अपनी दुनिया खो दी। जिनजादी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, और अगर मैं लौट गई तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। यूसुफ ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तो फिर वापस मत जाओ, यही गांव में मेरी ही दुनिया में रहो और तुम मेरी हकीकत हो। हम यहीं साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन बाहर गांव वाले हथियार लेकर जमा हो चुके थे। आधी रात को उन्होंने दुकान के बाहर आग जलाई और शोर मचाने लगे, जिंद को गांव से बाहर निकालो, यूसुफ पर लानत हो। यूसुफ ने दरवाजा बंद किया और जिनजादी की ओर देखा। अब क्या होगा? वो बोली, अगर मैं चाहूँ तो इन सबको राख बना सकती हूँ। मेरी ताकत तुमने नहीं देखी। यूसुफ कांपती आवाज में बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी को नुकसान पहुँचे। जिनजादी की आंखें नम हो गई। तो बताओ मैं क्या करूँ? यूसुफ कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, एक रास्ता है, तुम इंसान बन जाओ। जिनजादी चौंकी। ये मुमकिन है, मगर इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी? मेरी ताकत तुम्हारी जिंदगी के साथ मांगेगी। अगर तुम अपनी उम्र के साल मुझे दे दो तो मैं इंसान बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी छोटी हो जाएगी। यूसुफ खामोश हो गया। एक तरफ उसकी जिंदगी थी, दूसरी तरफ वो मोहब्बत जिसके लिए उसने बरसों इंतजार किया था। आखिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी का क्या फायदा अगर तुम ना हो? मैं तैयार हूँ। जिनजादी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो आगे बढ़ी और यूसुफ के माथे पर हाथ रखा। एक तेज रोशनी की लहर दौड़ी। यूसुफ को लगा उसकी सांसें हल्की हो रही है, मगर उसी पल जिनजादी का रूप बदलने लगा। उसकी बालों की चमक फीकी पड़ गई और वो एक आम औरत की तरह दिखने लगी। अब वो सचमुच इंसान बन चुकी थी। बाहर गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन वहाँ ना कोई जिन था, ना कोई साया, सिर्फ यूसुफ था और साधारण औरत जो उसके पास बैठी थी। लोग हक्का बक्का रह गए। जिंद कहाँ गया? वो एक दूसरे से कहने लगे। यूसुफ ने ठंडे लहजे में कहा, ये वही औरत है। जिंद नहीं, ये मेरी होने वाली बीवी है। तुम सबने वहम देखा था। गांव वाले शर्मिंदा हो गए, कुछ बड़बड़ाते हुए और कुछ चुपचाप लौट गए। जब सब चले गए तो यूसुफ ने उस औरत की ओर देखा जो अब सचमुच इंसान थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कान। यूसुफ, तुमने अपनी जिंदगी के साल मेरे लिए दिए। क्यों यूसुफ? यूसुफ ने नरमी से कहा, क्योंकि मोहब्बत जिंदगी से बड़ी चीज है। अगर तुम साथ हो तो कम साल भी काफी है। वो औरत रोते रोते मुस्कुरा दी। वो बोली, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। समय गुजरता गया। यूसुफ सचमुच कम साल जिया, मगर वो साल इतने कीमती थे कि सदियों से भारी लगे। कहते थे कि उसकी दुकान से अब भी एक अजीब सी खुशबू आती है, मोहब्बत और वफा की खुशबू। जब यूसुफ की मौत का दिन आया तो वो औरत जो कभी जिंद जादी थी उसके पास बैठी रही। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुमने कहा था ना कि कम साल भी काफी है। हाँ यूसुफ, तुमने सच कहा था। यूसुफ मुस्कुराया और आंखें बंद करके इस दुनिया से चला गया। उसकी मुस्कान हमेशा के लिए गांव के दिलों में रह गई। वो औरत सारी जिंदगी
اس کی یادوں میں جیتی رہی۔ لوگ اسے نائی کی بیوی کہتے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصلی راز کیا تھا۔ گاؤں کے بچے آج بھی قصے سنتے ہیں کہ کسی ایک نائی اور ایک جنجادی کی محبت نے سب کو ہلا دیا، اور کیسے سچائی اور قربانی نے انہیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا بنا دیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے اور آپ ایسی اور اسٹوری سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔